اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ کتاب مقدس یوحنا کی انجیل میں بیان کرتی کہ 2 دفعہ فضل ہو چکا ہے۔ وہ فضل ایسی مدد ہے جس کے ہم مستحق نہ ہوں کہ میں جمیا وچ گناہ، تو برائے مہربانی فضل مت مانگے، فضل کے لیے شکر گزاری۔ کتاب مقدس کہتی ہے اس کو اس پر رحم آیا، اس پر رحم آیا۔ میری اور آپ کی زندگی کے گناہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح خدا نے بھی مجھ سے اور آپ سے اور میری اور آپ کی زندگی کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا، بلکہ کتاب مقدس کے اس بھیت اور مکاشفے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ مبارک وہ ہیں جن کے گناہ ڈھانپ کے آپ کے لیے کس نے کفارہ دیا۔ پریز دی لارڈ پاسٹر صاحب، تھینک یو آپ کے وقت کے لیے۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے مقدسین جو لوگ ہیں ہمارے، وہ آج بھی فضل کو مانگتے ہیں دعاؤں میں اور اپنے اوپر خدا کے رحم کو مانگتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے۔ جی، اب سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عاصم جاوید۔ جی الیاس بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کیا آج ہمیں دعا میں فضل مانگنا چاہیے یا رحم کی اپیل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سب نے بھی دعاؤں میں سنا ہوگا کہ خداوند تو ہم پر فضل کر، خداوند تو ہم پر رحم کر۔ تو اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی میرے خیال میں 16 آیت میں پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ تو کتاب مقدس یوحنا کی انجیل میں بیان کرتی کہ 2 دفعہ فضل ہو چکا ہے۔ اب 2 دفعہ فضل کیا ہے؟ اگر آپ پیدائش کی کتاب دیکھیں تو جب ہم اس میں فضل کی ڈیفینیشن کریں اگر آپ، تو فضل ایسی مدد ہے جس کے ہم مستحق نہ ہوں، جس کے لیے ہم کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، مشقت نہ کریں، ریاضت نہ کریں، عبادت نہ کریں، چندے نہ دیں، دے یقیاں نہ دیں، سب کچھ خداوند آپ کے لیے مہیا کرے، تو اسے فضل کہتے ہیں۔ اگر آپ آدم کی تخلیق کا واقعہ پڑھ لیں تو آدم نے اپنے آپ کو پاک بنانے کے لیے کیا کیا؟ تو بائبل خاموش ہے کہ آدم نے کچھ نہیں کیا، خدا نے اسے بنایا، پاکیزگی کے لیے بھی، ہاسپٹیلٹی کے لیے بھی، اور سب کچھ خدا پرووائڈ کر رہا ہے۔ دیر از نو ایفرٹ فار مینس، کوئی آدمی کی وہاں کوشش نظر نہیں آتی۔ تو یہ پہلا فضل باغ عدن میں ہوا تھا جسے آدم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب کتاب مقدس کہتی ہے کہ دوسرا فضل نئے عہد نامے کے مطابق مقدسہ مریم کو جب جبرائیل فرشتے نے پیغام دیا، کہتا تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اگر ہم کتاب مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو بزرگ داؤد اس کی کلیئر سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں جمیا وچ گناہ، پنجابی میں، اور اگر اردو میں پڑھیں تو کہیں کہ میں تو پیدا ہی ماں کے باطن سے گناہ میں ہوا ہوں۔ تو یہ زبور کی کتاب میں آپ کو حوالہ ملے گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کسی منجی کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیا خود کو نجات دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ تو پھر ہمیں ایسے آدم کی ضرورت تھی جس کی ذات میں گناہ نہ ہو۔ اب جس کی ذات میں گناہ نہ ہو وہ تو خدا ہے۔ تو اب دوسرا فضل جب مقدسہ مریم کو پیغام دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ عورتوں میں مبارک ہے تو مروسی گناہ تو ان میں شامل ہے۔ تو پھر وہ پیدائشی طور پہ تو پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، جیسے میں اور آپ گناہ میں پیدا ہوتے، اسی طرح مقدس یوسف اور مقدسہ مریم بھی اس پروسیس میں سے آئے ہیں، آدم کی نسل میں سے آئے، اور وہ بھی مروسی گناہ کا شکار ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو مقدسہ مریم کو جب جبرائیل فرشتہ پیغام دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع، اس لیے کہ تم پر فضل ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا فضل مقدسہ مریم کے تھرو ہوا ہے۔ اب یہاں پر جیسے پہلے فضل میں ہوا، کیا دوسرے میں ایسا ہوا؟ اب دیکھیے کہ جب مقدسہ مریم کو پیغام دیا گیا تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور میرا تو مگیتر بھی کبھی میرے پاس نہیں آیا، تو اٹس ناٹ پاسبل، یعنی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرشتے نے پیغام دیا کہ یہ تیری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں، دنیا 21ویں صدی میں دنیا کے عالموں سائنسدانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کا سائنسدان ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو آج سے
2000 साल 2024 साल पहले हुआ, उसको आज भी साइंसदान मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे खुदा ने 2000 साल पहले भी ऐसा किया और आज भी उसी बात पर कायम है। और किताब मुकद्दस कहती मसीह जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ, जैसे यसाया नबी ने पेशनगोई की थी कि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। तो जो नबी ने कहा वो मसीह के साथ रूबरू पूरा हुआ। ये दूसरा फजल था। अब मुझे बताएं कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो माँ बाप शादी ब्याह करते, क्या ये इंसान का प्रोसेस है? नहीं, क्योंकि खुदा ने इंसान को ऐसा तख्लीक किया, उन्हें बरकत दी कि बलो पढ़ो और मामूर करो अपने ख़ानदानों को। तो ये प्रोसेस खुदावंद की तरफ से हमारे दरमियान बिल्ट हुआ है, ना कि साइंस और ह्यूमन की कोशिश से। तो इसका मतलब है कि जब मसीह की पैदाइश का पैगाम हुआ कि तू हामला होगी, तो यहाँ पर ना मर्द का किरदार नज़र आता है ना औरत का किरदार नज़र आता है। वो दोनों ही अपनी अपनी दलीलें पेश कर चुके थे, लेकिन जैसे फरिश्ते इन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने उस कलाम को रिसीव किया और यूं जो है सेकंड फजल का आगाज़ जो है वो होता है। अब यहाँ पर दूसरा फजल बागे अदन वाला पहला फजल और दूसरा फजल खुदावंद यीशु मसीह का मुकद्दसा मरियम के थ्रू हम तक पहुँचता है। और पहले फजल में भी खुदा ने इंसान को पाक बनाया था और दूसरे फजल में भी खुदा हमें पाक बना रहा है। जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज़ किया तो यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो खुदा ने बागे अदन में भी खुदा इंसान को पाक बनाया और मसीह कह रहा है कि मुझ पर ईमान लाओ और हमेशा की ज़िंदगी पाओ। और यहाँ पर दूसरा फजल यानी खुदा मुजस्सम होकर दुनिया में उतरा और आपको हमेशा की ज़िंदगी की दावत दे रहा है। तो पहला फजल बागे अदन में और दूसरा मुकद्दसा मरियम के थ्री यानी यीशु मसीह पैदा हुआ और फिर 33.5 साल मसीह ने यहाँ पर मनादी की और फिर आसमान पर चले गए। और उसने कहा कि मैं वापस आऊँगा और अपने सब मुकद्दसों को जो मुझ पर ईमान लाते हैं उन्हें भी साथ लेकर जाऊँगा। ना सिर्फ ये कहा बल्कि कहा कि जितने भी मुझ पर ईमान लाते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, हम सब एक साथ में रहेंगे। जिस तरह आदम और हवा खुदा के साथ रहायश पजीर थे, खुदावंद मसीह वही दावत आम आपको देता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं वापस आऊँगा और तुम सबको साथ लूँगा। जैसे आदम और हवा खुदा के साथ रहायश पजीर थे, आप भी हमारे साथ रहायश पजीर होंगे। सो पहले फजल और दूसरे फजल ने वही काम किया है जो पहले फजल ने किया था, दूसरे ने। मेरे अजीज़ों, अब भाई का सवाल था कि क्या आज हमें फजल मांगना चाहिए? तो बराए मेहरबानी फजल मत मांगे, फजल के लिए शुक्रगुजारी करें। क्यों? देखें कि खुदा ने आपको हाथ दिया है, कभी आपने हाथ दुआ में मांगा है? आप कहते जी हमें हाथ मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी हमें हाथ दिया है। खुदा ने आपको सर दिया है, आप कभी सर नहीं मांगते। आपको खुदा ने जिस्म दिया, आप कभी नहीं मांगते। तो जो चीज़ें खुदा ने आपको अता फरमाई हैं उनके लिए सुबह शाम खुदा की शुक्रगुजारी करें। फ़ज़ल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें क्योंकि खुदा ने 2 दफ़ा फ़ज़ल आप पर किया है, अब तीसरी बार खुदा ने फ़ज़ल नहीं करना। तो जब आप दुआ में कहते हैं कि खुदावंद हम पर फ़ज़ल कर, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ना मसीह मरा, ना पैदा हुआ, ना दफन हुआ। तो बराए मेहरबानी करके अपनी दुआ में लफ्ज़ों का चुनाव सोच समझ कर करें ताकि खुदा के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे खुदा मालूल हो। तो मेरे अजीज़ों, फ़ज़ल के लिए हर सुबह हर शाम शुक्रगुजारी करें। जैसे अपने जिस्म जान रूह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इसी तरह फ़ज़ल के लिए भी शुक्रगुजारी करें, ना कि फ़ज़ल को रोज़ रोज़ मांगे। सो मेरे ख़्याल में इतनी गुफ्तगू से आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि हमें फ़ज़ल मांगना नहीं चाहिए बल्कि फ़ज़ल के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो फ़ज़ल की बात यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और भाई ने एक और सवाल किया था कि रहम की हमें अपील करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप लूका की इंजील का मुताला करें तो वहाँ पर एक सामरी का आपको वाक़या मिलता है, नेक सामरी के नाम से, वो बड़ा ही किस्सा मसीहत में मशहूर है। तो वहाँ पर एक आदमी उठता है और वो मसीह से सवाल करता है कि क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह उसे पूछते हैं कि भाई आप शरीयत की बातों को मानते हैं, आप माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं? तो वो कहता है कि जी मैं बिल्कुल बचपन से ये इन बातों को करता रहा हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फिर तो सब कुछ अपना आप बेचकर गरीबों को दे दो। तो उसके लिए ये बात मुश्किल थी। तो फिर जब खुदावंद मसीह ने के ऊपर उसने सवाल किया जब मसीह के साथ कि फिर मेरा पड़ोसी कौन है,
सामरी जो वो बंदा था शरा का आलम, वो मसीह के ऊपर सवाल करता है कि आप बताओ कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब देखे इंसान होते हुए कई दफ़ा हम तकब्बर और घमंड में फंस जाते हैं। तो जब खुदावंद मसीह ने उससे कहा तो उसने जवाब दिया। तो जब सामरी ने सोचा, उसने शरा के आलम ने सोचा कि जब मैं मसीह से सवाल करता हूँ तो मसीह नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी कौन है। तो जब मसीह के साथ उसने सवाल किया तो उसने कहा कि मसीह ने उसे एक तमसील बयान की कि एक आदमी जो यरूशलेम से निकला यरू की तरफ जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा कूटा और दमुआ छोड़कर चले गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खुदावंद ने उसे एक मिसाल तमसील पेश की और उससे पूछा कि वहाँ से एक काहिन गुज़रा। तो काहिन का काम आपकी रूहानी ज़िंदगी को बेदार करना और खुदा से इंट्रोड्यूस करना है, यानी आपको रूहानी तौर पर बेदार करके आपका खुदा आपसे मिलवाना है। अब काहिन ने भी उसे नहीं उठाया। आप सब इस स्टोरी से वाकिफ़ है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। फिर वहाँ पर दूसरा एक लावी गुजरा। तो लावियों का काम बोझ उठाना है हिजरत के वक्त, और चर्च और हैकल की जितनी भी सामान होते थे उनको एक जगह से ट्रांसफ़र करना लावियों का काम है। तो आप सोचें कि एक बोझ उठाने वाला बोझ नहीं उठाने के लिए कायम, वो इधर उधर देखता है काहिन की तरह कि मुझे कोई नहीं देखता, और वो भी कतरा कर चला जाता है, और लावी भी इधर उधर देख कर कतरा कर चला जाता है। और फिर वहाँ पर एक सामरी आता है जिससे यहूदी नफ़रत करते हैं, इसराइली नफ़रत करते हैं, क्योंकि वो उनको नीच जात समझते थे। तो अब वो उसके पहनावे से तो जानता था कि ये एक सामरी यहूदी है, अबरानी है, लेकिन उसने उसकी परवाह ना करते हुए उसने कहा कि ये इसको तो मेरी ज़रूरत है। उसने सब गिले शिकवे भूल कर इस बात को एक साइड पर कर दिया, और किताब मुक़द्दस कहती है उसको उस पर रहम आया, उस पर रहम आया, और उसने उसकी मरहम पट्टी की। फिर उसे अपने गधे पर लाद कर उसे सराय में ले गया। उनको कहा कि जितनी इसकी कीमत आती मैं आपको अदा करूँगा, इसकी तीमारदारी करो, इसकी देखभाल करो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमारी ज़िंदगी में ठीक नेक सामरी की तरह ही किया। मेरी और आपकी ज़िंदगी के गुनाह बहुत ज़्यादा है। हमने माँ के गोश में गुनाह की हालत में अपनी आँख खोली है, और हम पैदाइशी तौर पर मरूसी गुनाह का शिकार हैं, और हमारे सरसत फितरत जिस्म जान रूह में गुनाह पाया जाता है। तो क्या हम इस काबिल थे कि हम पर रहम किया जाता? आप जानते हैं कि जो आपका कसूरवार होता है, आपको हक है कि आप उसे छोड़ें या आप उसे सज़ा दें। तो खुदावंद यीशु अगर मेरे और आपकी पैदाइशी गुनाह को देखे, मेरे और आपकी निजी ज़िंदगी को देखे, तो क्या उस सामरी ने जिस तरह उस पर तरस खा कर सारी गिलवे शिकों को भूल कर उसे सहराए में ले गया, बगैर परवाह करते हुए कि वो मुझसे हमसे नफ़रत करते हैं, इसी तरह खुदा ने भी मुझसे और आपसे और मेरी और आपकी ज़िंदगी के किरदार को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा नहीं किया, बल्कि किताब मुक़द्दस के उस भेद और मकाशफे को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि मुबारक वो हैं जिनके गुनाह ढांप दिए गए, और रहम करते हुए वो खुद मुजस्सम होकर दुनिया में उतर आए। तो आप बताएं कि अगर खुदा हम पर रहम ना खाता, खुदा हम पर तरस ना खाता, तो फिर खुदावंद मसीह कफ़ारा ही क्यों देता? तो इसी तरह फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस शरा के आलम से पूछा कि इन तीनों में से, अब देखें यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर जो अपना सवाल किया था, जो उसका सवाल ये था कि मेरा पड़ोसी कौन है। ठीक है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उससे सवाल पूछा कि भी इन तीनों में से तेरा पड़ोसी कौन है? तो उसने खुद जवाब दिया कि इन तीनों में से जिसने उस पर तरस खाया, जिसने उस पर रहम किया, वो पड़ोसी है। तो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपके लिए किसने कफ़ारा दिया? आपके लिए आसमान छोड़कर ज़मीन पर कौन उतरा? और अगर मसीह खुदावंद तरस ना खाते तो ना वो आते, ना आपके लिए कफ़ारा देते, और ना आज आप निजात याफ्ता होते। सो खुदावंद ने हम पर फजल भी कर दिया, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद ने हम पर रहम भी खाया, तरस भी खाया, इसीलिए उसने आपके लिए कफ़ारा दिया। सो हमारे लिए रहम की अपील करना भी मुनासिब नहीं है, बल्कि खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद शुक्र करते हैं कि तूने हम पर रहम किया और हमारा कफ़ारा दिया, और आज हम निजात याफ्ता हैं बग़ैर कामों के। काम खुदा हिसाब में नहीं लाता, खुदा आपके ईमान को हिसाब में लाता है, और जो काम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बुरे या अच्छे करते हैं, उनका तो रोज़े क़यामत के दिन इंसाफ होगा। सो खुदावंद
کو آپ وہ انصاف کریں گے. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح کے کردار سے سیکھیں, اور خداوند یسوع مسیح نے جو مثال دی نیک سامری کی اس سے سیکھیں کہ ہمیں ایک دوسروں پر رحم کرنا ہے. ہمیں خداوند سے رحم مانگنا نہیں ہے, رحم آلریڈی آپ نے ریسیو کر لیا ہے. اور رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ رحیم اور غفور ہے. وہ میرے اور آپ کے قصوروں غلطیوں کو سامنے نہیں لا رہا, تو اس نے رحم کر دیا اور وہ کہتا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں. وہ رحم کر چکا ہے. فضل کے لیے بھی شکر گزاری کریں اور رحم کے لیے بھی شکر گزاری کریں. خدا آج کے اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی برکت کو ملٹیپلائی کرے. آمین. تھینک یو پاسٹر. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.